পাখি পাখি এই মন পাখি লগা মোর মন পাখি মেলি যাও উৰি উৰি পাখি মেলি যাও উৰি জাকি মাৰি গৈ না মেৰি অহা পদূলি বুটলিয়ান লৰালি উৰি পাখি মেলি যাও উৰি দেউতাৰ হাঁহিৰে আইৰ সতে উমৰি ৰ'দে বৰষুণে ধেমালি আজৰি সেই আবেলি উৰি পাখি মেলি যাও উৰি ইংৰাজী অংক তপিনাতে সারি খিৰিকী ফাকেৰে মুকুতিৰা বেলি ঘৰলৈ উভতি খেলা মৰা মৰি দেউতাৰ ৰঙা চকু একে কোবে মাৰ বুকু পঢ়াতে বুলত ভাগৰৰ টোপনি আর নিচুকনি মৰমৰ বুলনি পাখি পাখি এই মন পাখি লগা মোৰ মন পাখি মেলি যাও উৰি উৰি পাখি মেলি যাও উৰি তেতিয়া চকুত জোন নিভা যাবে গৰ তোপা তোপে খৰা খুন সাঁতুৰি না দূৰি এটি এটি ৰাতি দিন খেলা লুকা চুৰি নিজকে বিচাৰো কোন ৰঙা নীলা চিলা উৰি উৰি মৰে খেলা এতিয়া কবিতা গানৰে কলিতা সকলে বুকুতে চকুলো বুটলি পাখি পাখি এই মন পাখি লগা মোৰ মন পাখি মেলি যাও উৰি উৰি পাখি মেলি যাও উৰি জাকি মাৰি গৈ না মেৰি অহা পদূলি বুটলিয়ান লৰালি উৰি পাখি মেলি যাও উৰি দেউতাৰ হাঁহিৰে আইৰ সতে উমৰি ৰ'দে বৰষুণে ধেমালি আজৰি সেই আবেলি উৰি পাখি মেলি যাও উৰি সপোনকে লৈ থাকে বা নাথাকে শাওনৰে ঢল তুমি মৰমৰে লৈ
বাণী দিয়ে ফাগুনৰে খবৰ তুমি ৰোৱা যেন মোলৈ আহে বাৰাহে ঘুমতি আহিবা ৰাতি সপোনকে লৈ সপোনকে লৈ খৰতে খৰতে চুৱে বানু চুৱে নিয়ৰে শেৱালি পাহিতি খৰতে খৰতে নাচে বা নাচে জোনাকী হৈ তুমি শুন নাচিবা মোৰে হিয়াতে ৰৈ আহে বাৰাহে ঘুমতি আহিবা ৰাতি সপোনকে লৈ সপোনকে লৈ জোৰে বানু জোৰে বান্ধি লওঁ কিনো মৰমৰে এনাজৰিকে পাওঁ জোৰে বানু জোৰে বান্ধি লওঁ কিনো মৰমৰে এনাজৰিকে পাওঁ বহে বা নবহে ফুলতে গৈ ৰঙিলি পখিলি তুমি ৰঙৰে চৈ আহে বা নাহে ঘুমতি আহিবা ৰাতি সপোনকে লৈ সপোনকে লৈ থাকে বা নাথাকে শাওনৰে ঢল তুমি মৰমৰে লৈ দুপাখি মেলি সমীৰে আহি দিয়ে বাণী দিয়ে ফাগুনৰে খবৰ তুমি ৰোৱা যেন মোলৈ আহে বাৰাহে ঘুমতি আহিবা ৰাতি সপোনকে লৈ সপোনকে লৈ থাকে বা নাথাকে শাওনৰে ঢল তুমি মৰমৰে লৈ মৰমৰে দুগালতে যেন সোণৰ চেকুৰা চকু জিলিকি ৰয় যৌৱন দেহ মন মুখৰিত গানে তুমি ফাগুনৰে নৈ থাকা বুকু জুৰি বৈ আলু ফুৱা বুকুতে তুমি মাথো মোৰে হৈ
সোণৰ চেকুৰা চকুত জিলিকি ৰয় যৌৱন দেহ মন মুখৰিত গানে তুমি ফাগুনৰে নৈ থাকা বুকু জুৰিবই ফুৱা বুকুতে তুমি মাথো মোৰে চেকুৰা চকুত জিলিকি ৰয় যৌৱন দেহ মন মুখৰিত গানে তুমি ফাগুনৰে নৈ থাকা বুকু জুৰিবই তুমি মাথো মোৰে তুমি ফাগুনৰে নৈ থাকা বুকু জুৰিবই পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি ছায়া গৈ নগৈ তাৰ আহে নামি হালধীয়া ৰং কিনো বাখৰুৱা প্ৰাণ কিনো বসন্ত নিবিৰ নয়ন বুজাব খুজি প্ৰশান্ত সাগৰ সমান মৰম বিচাৰি পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি ৰ'দালি সাঁতুৰি যোৱা গানৰ কোমল গান ভাগৰি নাভাগৰা তাৰ ঘামে ধোৱা গা মেঘ ৰঞ্জনী চুমি যাব যেনিবা ভৈৰৱ পুৱাৰো ভূপালী সন্ধ্যা নিশাদৰে ধাৰ কিনো গান্ধাৰ পাৰ কিনো আনন্দ প্ৰমাণ সাক্ষী শুনাব খুজি পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি
চকুৰে হিম মাথো গানৰে প্ৰকাশ বীৰ বীৰ হাঁহি দৰা গানৰে বিকাশ অলেখ যুত ৰাম ধেনুৰ গানতে আবাস খৰা পাতো কলিটিও গানৰে প্ৰবাহ তালে তালে ৰয় কিনো সুৰে সুৰে বয় কিনো ছন্দ প্ৰবাল মণি গুঠিব খুজি পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি ছায়া গৈ নগৈ তাৰ আহে নামি হালধীয়া ৰং কিনো বাখৰুৱা প্ৰাণ কিনো বসন্ত নিবিৰ নয়ন বুজাব খুজি প্ৰশান্ত সাগৰ সমান মৰম বিচাৰি পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি বুকুতে গুপুতে অকলে এৰি থৈ কোতেনো থাকা গৈ তুমি হিয়াৰে কোণতে অশ্ৰু বাগৰে এতিয়া নীৰৱ হৈ তুমি জ্বলি জ্বলি জীৱন পুৰি পুৰি সপোন এতিয়া ধাৰকে ৰোলা সাবতি চকু মেলা সাৰ পোৱা মোলে চোৱা আকৌ এবাৰ কথা কোৱা মোৰ হোৱা চকু মেলা সাৰ পোৱা মোলে চোৱা আকৌ এবাৰ কথা কোৱা মোক লোৱা চেঁচা চেঁচা আঙুলি এয়াতো নহয় তুমি গধূলি গোলাপ মোৰ শুই থকা জননী চেঁচা চেঁচা আঙুলি এয়াতো নহয় তুমি গধূলি গোলাপ মোৰ শুই থকা জননী নতুন ফাগুন মোৰ হেৰুৱা সপোন মোৰ তোমাৰে পাৰিজাত তোমাকে সামৰি তোমাৰে পাৰিজাত তোমাকে সামৰি বুকুতে গুপুতে অকলে এৰি থৈ কোতেনো থাকা গৈ তুমি হিয়াৰে কোণতে অশ্ৰু বাগৰে এতিয়া নীৰৱ হৈ তুমি আজিও শিশু
খুজি হাত ধৰি ধৰি আজিও শিশু মই গোৱা তুমি সেই গান খুজি খুজি হাত ধৰি ধৰি চকু মুদি তুমি চকুনে মেলিলা নেচালা মোলে নিদিলা সঁহাৰি নেচালা মোলে নিদিলা সঁহাৰি বুকুতে গুপুতে অকলে এৰি থৈ গোটেনো থাকাগৈ তুমি হিয়াৰে কোণতে অশ্ৰুবাগৰে এতিয়া নীৰৱ হৈ তুমি জ্বলি জ্বলি জীৱন পুৰি পুৰি সপোন এতিয়া ধাৰকে জ্বলা সাৱতি চকু মেলা সাৰ পোৱা মোলে চোৱা আকৌ এবাৰ কথা কোৱা মোৰ হোৱা চকু মেলা সাৰ পোৱা মোলে চোৱা আকৌ এবাৰ কথা কোৱা মোৰ হোৱা উঠা জাগা সাৰ পোৱা কথা কোৱা আকৌ এবাৰ মাত দিয়া মুখ চোৱা চকু মেলা সাৰ পোৱা মোলে চোৱা আকৌ এবাৰ কথা কোৱা মোৰ হোৱা চকু মেলা সাৰ পোৱা মোলে চোৱা আকৌ এবাৰ কথা কোৱা মোক লোৱা মোলৈ এজনী ছোৱালী চালি নে নাই মোলৈ এজনী ছোৱালী চালি নে নাই কঁকাল খামুচিয়া লিহিৰি পতিয়া কঁকাল খামুচিয়া লিহিৰি পতিয়া বগীকৈ ধুনীয়া চাই মোলৈ বাৰু তই এজনী ছোৱালী চালি নে নাই মোলৈ এজনী ছোৱালী চালি নে নাই শুনিলো চাকৰি নাপালো এতিয়া কি কৰো ক গাঁৱত পৰি আছে মাটি তিনি পুৰা খেতিতে ধৰুনি ক পঢ়িলো শুনিলো চাকৰি নাপালো এতিয়া কি কৰো ক গাঁৱত পৰি আছে মাটি তিনি পুৰা খেতিতে ধৰুনি ক নাঙলৰ মুঠিতে কিমান শকতি আজি বুজি পালো মই খেতিত ধৰিলেও কঠীয়া ৰুবলৈ ঘৰত মোৰ কোন আছে ক ছোৱালী চালি নে নাই
নবৈ মোলৈ এজনী ছোৱালী চালি নে নাই। লগৰে ল'ৰাবোৰ বাপে কি হৈ গ'ল তই দেখিছনে নাই। গাঁৱৰে জীয়াৰী বোৱাৰী হৈ গ'ল খবৰ ৰাখিছনে নাই। লগৰে ল'ৰাবোৰ বাপে কি হৈ গ'ল তই দেখিছনে নাই। গাঁৱৰে জীয়াৰী বোৱাৰী হৈ গ'ল খবৰ ৰাখিছনে নাই। খুজাই আনে খুজি কণাই আনে কানি মোলৈ জানো কোনো নাই। গাঁৱৰে এজনী গোটাই তই নিদিলে মৰিলেও কান্দোতা নাই। অ নবৈ মোলৈ এজনী ছোৱালী চালি নে নাই। অ নবৈ মোলৈ এজনী ছোৱালী চালি নে নাই। কঁকাল খামুচিয়া লিহিৰি পতীয়া কঁকাল খামুচিয়া লিহিৰি পতীয়া বগীকৈ ধুনীয়া চাই। অ নব মোলৈ বাৰু তই এজনী ছোৱালী চালি নে নাই। অ নবৈ মোলৈ এজনী ছোৱালী চালি নে নাই। অ নবৈ মোলৈ এজনী ছোৱালী চালি নে নাই। অ নবৈ कैसे हो सभी? हो गया दिन निकल गया, अंधेरे अंधेरे में थे। तो भाई कैसे रहे आप लोग? आपने पिछले वीडियोस देखे ही होंगे, है ना। उसी से रिकॉर्डिंग आज का वीडियो है हमारा। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई YouTube आपको क्यों पैसे देता है, क्या फ़ायदा है YouTube को, गूगल को आपको पैसे देने का। आप सिर्फ वीडियो डाल रहे हो और वो आपको पैसे दे रहा है। पता तो सभी को है कि भाई हमारे वीडियो पे या वेबसाइट पे जहाँ पे भी जो भी एड्स आती है वो एड्स के बदले में YouTube पैसा देता है ना। देखो अभी बात इतनी लंबी है कि अभी से नींद आने लगी, कब बताऊंगा आपको। इसमें पता है YouTube गूगल को भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। मेरे को बताओ, आप वीडियो डाल रहे हो, मेहनत तो लग रही है। आज की डेट में नेट फ्री आता है रोज़ का 1 GB 2 GB। भाई वो ज़माना याद करो, मुझे अभी भी याद है जब मैंने मोबाइल लिया था फर्स्ट। इनकमिंग के लिए भाई कुछ 2 या 3 रुपए मिनट लगता था, है ना। उस टाइम पे मोबाइल लिया हुआ है। तो वो ज़माना था। उसके बाद में नेट, वो पता है आपको, कैश, वो 1 रुपये कॉइन से अपन घसते थे। वो टाइम पे तो पोस्ट पेड था, AT&T का मोबाइल था वो टाइम पे सबसे स्टार्टिंग में, जब इनकमिंग लगता था। उसके बाद में फिर वो आइडिया हुआ, फिर आइडिया बहुत दिन चला, उसने भी इनकमिंग चलाया। उसके बाद में फिर एयरटेल आया, यूनिनॉर आया, उसके बाद में आपका डोकोमो आया, बहुत से आए और चले गए। वो होने के बाद में फिर मैंने वो टाइम पे मोबाइल, एक हैंडसेट लिया था नोकिया का 3310 3315 आया था, आपको याद होगा। पत्थर मोबाइल था, फेंक के मारो, है ना। तो वो टाइम से अपन यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, बहुत से लोग कर रहे होंगे, मेरे पहले से बहुत से लोग कर रहे होंगे। तो भाई तब नेट कितना मिलता था, 100 MB 50 MB। आज तो नेट अनलिमिटेड है, घर पे वाईफाई लगा है, वापरो, कितना वापरना है, 500-600 रुपये महीने में। अभी तो जियो ने ला लिया ऑफ़र, कोई फ्री में देता है 2 महीने। मैंने लगाया था, लेकिन मेरे को 1000 GB नहीं पूरता है मेरा काम अपलोडिंग। अब आपका इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, आपसे बात करते तो एक वीडियो बनता है मेरा 6 GB 8 GB का,
अब अगर मैंने 10 वीडियो बना लिया भाई तो 100 GB के तो नए वीडियो हो गए मेरे। फिर इसको अपलोड करके एडिटिंग करूँगा, फिर से डाउनलोड करूँगा सर्वर से, फिर बाद में अपने दूसरे इस पे अपलोड करूँगा सर्वर पे, फिर वहाँ से यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। एक ही दिन में तो भाई मैं कम से कम 100-200 GB खा डालता हूँ, है ना। हमारे नेट वाले भैया है कपिल भैया, कपिल सुरोश है, मस्त आदमी है यार, सर्विस अच्छी है नेट की। रात में भी नेट बंद हो तो चालू करके देता है, कुछ प्रॉब्लम आया तो। ये बोलते हैं कि आप जितना नेट वापरते हैं, मेरे तो 10 यूज़र वापरते उतना। मैं बोला चलो भाई ठीक है। तो बात ये है कि भाई नेट फ्री है, सब चीज़ें हैं, तो आप लोग को क्या करना है ना, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना है और अपलोड करना है, थोड़ा बहुत एडिटिंग करके। फिर एडिटिंग आप कैपकट से करो, चाहे फिल्मोरा से करो, एडोब प्रीमियर से करो, या तो फिर इनशॉट से करो, या कैनवा से करो, जिसमें आपको सिंपल लगता है वहाँ से करो, या तो वो आता है ना काइन मास्टर वगैरह, उसमें से करो। लेकिन आप फ्री में क्यों हमाली करोगे? आपको वीडियो बनाना है ना, कुछ तो मेहनत लग रही है ना, नेट भी लग रहा है, थोड़ा स्किल्स लग रहे हैं, बात कर रहे हैं, टाइम जा रहा है। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, देखो मेरा 15 मिनट का वीडियो है, तो कम से कम मेरे को 1 घंटा जाएगा ये वीडियो में, 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि भाई एडिटिंग है, वॉइस क्लियरेंस है, और कुछ डालना है, मेरे को इफ़ेक्ट डालना है या कुछ है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ तो इसके बदले मोह बदला मिलना चाहिए। जो बोलते हैं ना हम लोग के, भाई हम काम तो कर रहे हैं लेकिन इसका हरजाना बोलते या कुछ ऐसा बोलते हैं ना, हरियाणा हर नहीं आता है यार, क्या हंसो, वो तो मिलना चाहिए। तो वो देता है यूट्यूब हमको। अब यूट्यूब के पास पैसा कहाँ से आता है? भाई आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करना है हमको। ऐड कहाँ पे लगाएंगे? आजकल सोशल मीडिया का और ऑनलाइन का ज़माना है। 50% लोग तो मैं बोलूँगा 50% लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है, दिन भर मोबाइल पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे रील्स देखना, वीडियोस देखना, फेसबुक पे, ये सब चलता है। अब वो ऐड फ्री में तो नहीं करेंगे गूगल वाले या यूट्यूब वाले। और जब दिन भर आपके हाथ में मोबाइल है और वो स्क्रीन पे वो चीज़ आएंगी आपके, तो आप थोड़ा पढ़ोगे, रुकोगे तो सही। और जैसा समझो एक कोई शॉप है, जनरल स्टोर ले लेते हैं अपन, बहुत सी चीज़ें मिलती है जनरल स्टोर में, प्लास्टिक के आइटम, उसके बाद में कॉस्मेटिक्स, उसके बाद में बच्चों के खिलौने, सब। अब मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, सॉरी मेरे दोस्त के बच्चे का, छोटा बच्चा है, क्या गिफ्ट दूँ? अब वो ऐड मैंने देखा हूँ कभी जनरल स्टोर की, तो मैं क्या सोचता हूँ यार, वो ऐड देखा था मैंने, वो जनरल स्टोर का नाम था, ये जो भी था फलाना ABCD, वहाँ पे यार बच्चों के खिलौने मुझे अच्छे लगे थे वो वीडियो ऐड के अंदर, वहाँ जाके लेता। भाई आप चले जाएंगे वहाँ पे और आप वहाँ से ले लोगे, वो दुकान वाले का तो फ़ायदा हो गया ना। सॉरी, अब वो दुकान वाला फुकड़ में फ़ायदा कर रहा है जी नहीं, वो ऐड के लिए वो गूगल, यूट्यूब इन लोग को पैसा दे रहा है, या ऐड एजेंसी को पैसा दे रहा है। बिना पैसे के कोई भी ऐड रन नहीं होती है। फिर कहीं पे 1 रुपया लग रहा है, कहीं पे 10 रुपये लग रहा है, कहीं पे 100 लग रहा है, कहीं पे 1000 लग रहा है। ये होता है सिस्टम ऐड वाला। अब वो ऐड का पैसा तो ले रहा है गूगल, लेकिन वो ऐड कब देखेंगे लोग? भाई जब लोग आपके वीडियोस, आपके शॉर्ट्स डाले हुए ये सब देखेंगे, तभी तो वो लोग ऐड देखेंगे ना। नहीं तो वो ऐड लगा के कौन देख रहा है? मेरे को बताओ, सिर्फ ऐड देखने के लिए आप मोबाइल के ऊपर जाओगे और अपना टाइम ख़राब करोगे क्या? है कि नहीं? तो ये सिस्टम होता है। वो पैसों में से यूट्यूब अपनी एजेंसी को, यूट्यूब या गूगल, मैं अभी यूट्यूब बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादा बात यूट्यूब के ऊपर कर रहे हैं इसलिए, और इजी यही है नए क्रिएटर के लिए। तो जितने भी ये है उन लोगों को पैसा देने के बाद उसमें से कुछ परसेंटेज वो खुद रखता है यूट्यूब। उसका इतना बड़ा स्ट्रक्चर चलाना है, सर्वर चलाना है, हम लोग इतने वीडियो सेव करते हैं, ये सारी चीज़ें, खर्चा उसको भी लग रहा है ना डाटा सेंटर पे, और कुछ पैसा उसमें का परसेंटेज हमको मिलता है। अब कितना मिलेगा? देखो भाई, ये डिपेंड करता है आपका CPM कितना है। है ना, CPM ये रहता है कि भाई ये वीडियो देखने के ऊपर, अगर वो बंदा वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहा है किसी ऐड पे,
या तो सिर्फ ऐड दिख रहा है, तो उसके ऊपर पर 1000 है ना, वो कितना जा रहा है CPM 0.1 डॉलर का है कि $0.50 का है, $1 का है, $4 का है, $50 का है। 1000 लोगों ने वो चीज़ देखे तब जाके आपको जितने का CPM रहेगा 0 पॉइंट या तो फिर $1000 का। $1000 का अगर CPM है भाई, तो 1000 लोगों ने देख लिया तो $1000 बन गया आपका, 80,000 बन गया। ये होता है सिस्टम। अब इंडिया के अंदर जनरली क्या होता है ना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ $1-2 का रहता है eCPM। वैसा तो सेंट में रहता है, 1-2 बता रहा हूँ। हालांकि वेबसाइट के ऊपर हमारे जो NMS है, हमारे सर, इंडिया के अंदर वो $15 तक का eCPM लेके जा रहे हैं भाई, वो भी लीगली। कोई लोडिंग वाला काम नहीं, लीगली है ना, इनलीगल काम तो इसमें है ही नहीं। लोग लोडिंग करते हैं, VPN वगैरह लगा के USA से क्लिक मारते हैं, या कोई फ्रेंड उनको बोलेंगे अरे भाई मेरा वीडियो खोलो, उस पर 2 ऐड पे क्लिक मार दे। हम लोग ऑर्गेनिक वर्क में उतना eCPM लेके जाते हैं भाई। सर के पास में है स्ट्रेटजी, बहुत साल से काम कर रहा है बंदा। तो अब अगर 1000 इंप्रेशन आ गए हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो जो eCPM रहेगा $1 का या $20 का, उतना हमारे को मिल गया। सेम सिस्टम है यूट्यूब का, यूट्यूब के अंदर उतना व्यूज़ आ गया तो जो भी eCPM है उतना पैसा आपको मिल गया। हम लोग पकड़ के चलते हैं 0.50 का हमारा eCPM रहता है इंडिया में जनरली। 1000 लोगों ने अगर आपका देख लिया तो 0.50 यानी $0.50 आपका बन गया। ये वीडियो अगर आपका 1 लाख लोगों ने देख लिए तो है ना, है कि नहीं चीज़। ये चीज़ होती है eCPM, ये मिलता है पैसा। लेकिन आपका कंटेंट वैसा होना चाहिए, लोग आके उस पर रुकना चाहिए, वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट के अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ होना चाहिए कि लोगों के काम की हो। अभी जैसा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कहीं कहीं आपको बोर हो रहा होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ ना कुछ काम की है, इसलिए आप लोग भी देख रहे हो वीडियो। तो इस तरह से लोग देखते हैं और बहुत से टाइम पास करते हैं। जैसा मेरे ऑफिस में सोने आए, तारक मेहता देखते रहता है दिन भर। क्यों? टाइम पास करने के लिए, काम नहीं है तो रील घुमाते रहेगा दिन भर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, क्यों? टाइम पास। तो वो लोग भी। लेकिन भाई अगर बंदा यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी अगर वो हमारा कंटेंट देखता है तो भाई फ़ायदा हमारा है, हमको पैसा मिलेगा। ये होता है मेन फंडा, है ना। अब बात रही कि आप लोगों को पैसा कैसे आता है। ये पैसा आता है भाई डॉलर में, डॉलर वाले बन जाते हैं हम इंडिया में रहने के बाद भी, है ना। सिंगापुर में हेड ऑफिस है गूगल का, वहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। वो पेमेंट ट्रांसफ़र के बाद में इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट होके आता है। और वो हमको बैंक में मिलता है। जैसा कि हम लोग भी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, कुछ वेबसाइट्स है हमारे वायरल चलती है, कुछ चैनल्स है वहाँ से, तो ये सारा के सारा पैसा डॉलर में आता है, डॉलर में से इंडियन करेंसी में होता है। इसके अंदर आपको टैक्सेस लगता है इंडियन गवर्नमेंट का जो है वो, और वो हमने देना भी चाहिए भाई। टैक्सेस के भरोसे तो हमको सारी सहूलत गवर्नमेंट देती है। सहूलत की बात करूँ आपको गवर्नमेंट की तो बहुत कुछ है, अगले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं खुद एक्सपीरियंस ले चुका हूँ भाई। तो ये सारी चीज़ें कट कुट के वगैरह हमको पैसा ज़्यादा नहीं कटता है, टैक्स कम होता है। डॉलर का जो रेट होता है ना, सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस में कुछ फ़र्क होता है, उसमें कुछ सेट का वगैरह या 1-1.5 रुपये का कुछ ऐसा होता है फ़र्क। प्लस उसमें करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस लगते हैं, ट्रांजैक्शन के चार्जेस लगते हैं, और कुछ 18% ट्रांजैक्शन के ऊपर GST लगता है। 18% GST है ना, ऐसा नहीं कि अगर आपने $100 बनाया तो उसका 18%। आपने अगर $100 बनाए और वो आपके $100 आए बैंक में, तो $100 को अप्रोक्सीमेटली आपको चार्जेस ट्रांजैक्शन से लेके सभी चार्जेस ऐसा पकड़ लो, आप लग रहा है 500 साढ़े 500 रुपये, है ना।
उसके ऊपर आपको देना होता है 18%, 500-550 के ऊपर, और वही आपका $1000 है तो वो बढ़ता है। ये सारी चीज़ें फंडा इसमें रहता है भाई, और कुछ नहीं है। तो इस तरह से सारा पेमेंट आता है यूट्यूब का या गूगल का, आपकी अगर वेबसाइट है तो, और इस तरह से आपकी अर्निंग बढ़ती है। अब बात आती है कि भाई चैनल कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, इसके लिए कुछ पैसा लगता है क्या? तो भाई फुकट की जतरा है जो बोलते हैं ना हम लोग, फुकट में जतरा करते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में तो चलता है, बाकी आप कौन से स्टेट से देख रहे हो कमेंट करके बताना। और वहाँ पे इस तरह के वर्ड में कुछ बोलते होंगे ना दोस्त लोग कि फुकट की जतरा हो गई अपनी, यानी फुकट के अंदर इंजॉय हो गया भाई, फुकट में इसका सब कुछ हो गया इस तरह का। तो वो कौन सा वर्ड है वो कमेंट करके बताना आप सब लोग। भाई जीमेल आईडी हर एक के पास होता है अपने अपने फ़ोन के अंदर, बस वो जीमेल से आपको यूट्यूब खोलना है, वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएट चैनल का, उस पर क्लिक करना है। डिटेल्स मांगता है, नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, कुछ आपको चैनल का नाम क्या रखना है, हैंडल क्या नाम से रहेगा, ये सारी चीज़ें आप भर दो, हो गया आपका चैनल 5 मिनट के अंदर बन के रेडी। 5 मिनट भी नहीं लगेगा सारी डिटेल भरने को। तो इस तरह से होता है भाई ये चैनल रेडी, कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। अब बात आती है इसको मोनेटाइज करने का टाइमिंग और क्रेडेंशियल क्या, क्राइटेरिया क्या रहता है, सॉरी इसका क्राइटेरिया रहता है कि आपका 4000 पब्लिक वॉच टाइम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वीडियो आप ही देख रहे हो, आपके मम्मी पापा के भाई बहन दोस्त किसी के भी मोबाइल में देख ले रहे हो। ऑर्गेनिक यूज़र से 4000 घंटे का वॉच टाइम आपके पूरे चैनल पे आना चाहिए, लॉन्ग वीडियो से, शॉर्ट वीडियो से नहीं। 1000 पब्लिक रियल सब्सक्राइबर चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया आपने पूरा कर दिए कि गूगल के वहाँ पे आ जाता है आपको यूट्यूब स्टूडियो में कि भाई आप लोग चैनल अप्लाई कर सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए इस तरह से। और वो करने के बाद में आपका चैनल 3rd या 4th डे सारी डिटेल होती है और वो चैनल बन के रेडी हो जाता है ना। तो आसान तरीका है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चैनल किस तरह से बनाना है, चैनल बनने के बाद में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और चैनल बनाने के पहले क्या आपको रिसर्च करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ये पूरी बातें सुन लियो तो एक काम और कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाला बटन दबा दो और लाइक कर दो, है ना, अगर अच्छा लगे तो। और कमेंट करना भाई, बिना कमेंट के मत जाना, ठीक है। तो फिर हम लोग